غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو تلیطا میں آنے کا پیغام دے کر قاصد کو بھیج دیا تھا۔ ایک شام ایجی لونا اپنے گھر میں عبدالعزیز کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ گھر محل جیسا تھا جس میں اس علاقے کا عیسائی گورنر رہا کرتا تھا۔ ایک خادمہ نے کمرے میں آ کر ایجی لونا کو اطلاع دی کہ اس کی ایک پرانی خادمہ اسے ملنے کے لیے آئی ہے۔ کیا نام بتاتی ہے؟ ایجی لونا نے پوچھا۔ نام نہیں بتاتی، خادمہ نے جواب دیا۔ کہتی ہے نام بتایا تو ملکہ ملنے سے انکار کر دیں گی، اور کہتی ہے کہ ملکہ نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا تو انہی کا نقصان ہوگا، بھیج دو اندر۔ ایجی لونا نے کہا۔ خادمہ کے جانے کے بعد 30-35 سال کے درمیان کی عمر کی ایک دراز قد عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پرکشش عورت تھی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ تم ہو؟ ایجی لونا نے بے روحی سے کہا۔ نادیہ، کیا تم اس امید پر آئی ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا؟ اور میری خادمہ سے تم نے یہ کیا کہا ہے کہ میں نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا تو میرا ہی نقصان ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا میرا؟ میں معافی مانگنے نہیں آئی ملکہ، نادیہ نے کہا، اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے آئی ہوں۔ آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت تو دیں۔ اس نے کیا جرم کر دیا ہے ایجی لونا؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ شاہ راڈرک جب دریائے گادلیت کی طرف جا رہا تھا تو میں یہاں مریدہ آ گئی تھی۔ ایجی لونا نے عبدالعزیز کو سنایا۔ یہاں شاہی خاندان کا ایک آدمی سب سے بڑا حاکم تھا۔ یہ بغاوت کے جرم میں قتل ہو چکا ہے۔ شاہ راڈرک کی شکست اور موت کی اطلاع آئی تو رازیلیو میرا امیدوار بن گیا۔ اس نے ایسے جذباتی انداز سے میرے آگے اظہار محبت کیا کہ میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ مریدہ کو مسلمانوں سے بچاؤ، اسی شہر کو دارالحکومت بناؤ، فوج تیار کرو اور مسلمانوں کو اندلس سے نکالو، پھر میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ رازیلیو نے اس شہر کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ خود میں نے اپنی فوج اور شہر کے لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ نادیہ میری خاص خادمہ تھی، اسے میں نے اپنی ہمراہ سہیلی بنا رکھا تھا۔ میں ایک رات شہر کے سرکردہ آدمیوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتا رہی تھی کہ شہر کے لوگوں کو اور عورتوں کو کس طرح لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس اجلاس میں رازیلیو نہیں تھا۔ اس نے پیٹ کے شدید درد کی شکایت کی تھی۔ میں اجلاس سے فارغ ہو کر اسی کے کمرے کی طرف چلی گئی کہ اسے دیکھاؤں۔ میں اس کے کمرے تک ابھی پہنچی نہیں تھی کہ میری ایک خادمہ نے مجھے روک کر کان میں بتایا کہ نادیہ بہت دیر سے رازیلیو کے کمرے میں گئی ہوئی ہے۔ اس خادمہ نے مجھے بتایا کہ اس نے چھت پر جا کر روزن سے دیکھا اور دونوں کو بدکاری کی حالت میں پایا۔ یہ خادمہ نیچے آ گئی اور ایک کھڑکی کے ساتھ کان لگائے۔ رازیلیو اور نادیہ اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ کھڑکی کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ دونوں نشے میں تھے۔ خادمہ نے بتایا کہ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ رازیلیو نے اس نادیہ کو میری جاسوسی پر لگا رکھا ہے کہ میں کون سے جرنیل سے چوری چھپے ملتی ہوں اور کس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نادیہ آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں تھی؟ اس نے جھوٹ بولا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نشے میں تھی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے اس شہر میں نظر نہ آنا۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ رازیلیو اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور قتل کی دھمکی دے کر شراب پلائی، اور شاہی خاندان میں یہ کوئی نئی اور قابل اعتراض بات تو نہیں، عبدالعزیز نے کہا۔ اگر یہ اس کا حکم نہ مانتی تو قتل ہو جاتی۔ تم نے رازیلیو سے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، ایجی لونا نے جواب دیا۔ اسے تو میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا۔ نادیہ کو نکال کر مجھے افسوس نہیں ہوا۔ مجھے پہلے بھی کسی نے بتایا کہ یہ ہے تو خادمہ، لیکن رازیلیو کو اس نے مٹھی میں لے رکھا ہے۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا، عبدالعزیز نے کہا۔ اب اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے آئی ہے۔ ہاں بتاؤ، ایجی لونا نے نادیہ سے پوچھا۔
क्या सबूत पेश करने आई हो? बैठ जाओ। मैं ये अर्ज करने नहीं आई कि मुझे माफ कर दें। नादिया ने कहा, ना मैं ये कहूंगी कि मुझे फिर अपनी खिदमत के लिए रख लें। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैं बेगुनाह थी। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे हादमा नहीं बल्कि सहेली बनाकर रखा और मुझे हमेशा कीमती कपड़े पहनाए और मुझे ये भी इजाजत दिए रखी कि मैं शहजादियों की तरह बन संवर कर रहा करूं। आपने मुझे ऐसी हैसियत दी कि राजिलिव जो मरीदा का बादशाह था मुझे पसंद करने लगा और उसने मुझे अपने कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। उसने मुझे आपकी जासूसी के लिए कहा था, लेकिन मैंने कभी आपकी जासूसी नहीं की थी। मैं आपको ये धोखा नहीं देना चाहती थी। अब क्या बात है? अब्दुल अजीज ने पूछा। क्यों आई हो? मलका एजी लूना के कत्ल की साजिश हो रही है, नादिया ने कहा, और उसके लिए मुझे तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह मुझे तैयार किया जा रहा है ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हाँ हाँ, अब्दुल अजीज ने कहा, इत्मीनान से सुनाओ, हम सुनेंगे। मैं मुरीदा से कुछ दूर एक गांव में रहती हूँ, नादिया ने कहा। वहाँ एक बहुत बड़े जमींदार के घर में आई हूँ। उसके बच्चों की देखभाल करती हूँ। इस जमींदार को मैंने बताया था कि मैं मलका एजी लूना की हास हादमा हुआ करती थी। एक रोज जमींदार ने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक साहिर के पास ले जाऊंगा। वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा और तुम्हें फिर महल में नौकरी मिल जाएगी। मैं उसके साथ चली गई। वो साहिर उसी गांव में रहता था। मैंने पहले कभी उसे इस गांव में नहीं देखा था। वो नया नया आया था। उसने मुझे अपने सामने बिठा लिया और पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं मलका-ए उंदलस की हास हादमा थी और जरा सी गलती पर मलका ने मुझे शहर से निकाल दिया है। मलका ने मुझे अपनी सहेलियों जैसी हैसियत दे रखी थी। मैं चाहती हूँ कि मलका मुझे फिर अपनी नौकरी में ले ले। मैंने ये ख्वाहिश अपने दिल में छुपा ली थी और मैं किसी को नहीं कहना चाहती थी कि वो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। मालूम नहीं मेरे इस जागीरदार आका को मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों पैदा हो गई थी कि उसने खुद ही मुझे कहा कि चलो इस साहिर से ऐसा सहर करवाऊंगा कि तुम्हें महल में वही मुकाम फिर मिल जाएगा। मैंने ये सोचकर भी अपनी इस ख्वाहिश को दबा लिया था कि मलका एजी लूना अब मलका नहीं रही, क्योंकि उंदलस के तमाम बड़े शहरों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है और शाह राडरक मारा जा चुका है। फिर भी मैं मलका के पास ही आना चाहती थी। मैं अपने नए आका की हमदर्दी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। साहर ने मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछी तो मैंने बता दिया। उसने मेरी कनपटियां उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता मलनी शुरू कर दी और उसके साथ ही अपने अंगूठे मेरे माथे पर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ता रहा। उसने मुझे कहा कि उसका अमल ऐसा है जो उल्टा किया जाता है, इसलिए मैं वो अल्फाज दोहराती जाऊं जो वो कहता है। उसने मुझे कहा कि मलका एजी लूना का चेहरा अपने सामने लाओ और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रहो। मैं मलका का तस्वर अपने सामने लाई और उसकी आंखों में आंखें डाल ली। साहर ने कहा मैं उसके अल्फाज दोहराऊं। उसने ये अल्फाज कहे, ये औरत दुश्मन है और मुझे इससे नफरत है। ये मेरे सामने आई तो मैं इसका गला घोंट दूंगी। मैंने ये अल्फाज दोहराए। साहर ने कहा कि एजी लूना का तस्वर सामने रख कर ये अल्फाज इस तरह दोहराती रहो जैसे तुम वाकया ही इस औरत से नफरत करती हो और इसे कत्ल कर दोगी। मैंने ये अल्फाज दोहराने शुरू कर दिए, लेकिन मैं अपने दिल में हकीकी नफरत पैदा न कर सकी और साहिर को बताया कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि मैं इस औरत को अपना दुश्मन समझ लूं जिसने मुझे इतनी ज्यादा इज्जत दी थी। साहिर ने ऐसे अंदाज और ऐसे लहजे में मुझे अपने अमल का ये फलसफा समझाया कि ये दरअसल नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है। मैं इसकी बात मान गई। उसने पहले ही कह दिया था कि अल्फाज हवाइश के उलट कहे जाएंगे। उसने फिर मेरी कनपटियां और मेरा माथा आहिस्ता आहिस्ता मलना शुरू कर दिया। मुझ पर गनुदगी सी तारी होने लगी और मलका का चेहरा मेरे सामने इस तरह वाजे हो गया जैसे ये तस्वुर नहीं बल्कि हकीकी एजी लूना मेरे सामने बैठी है। फिर ऐसे हुआ जैसे मैं सो गई थी, लेकिन वो ख्वाब था या तस्वुर था कि मलका एजी लूना मेरे सामने घूमती फिरती रही और मेरे अंदर इस किस्म का एहसास पैदा हो गया कि ये औरत मुझे अच्छी नहीं लगती और इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये तस्वुर या ख्वाब खत्म हो गया और मैं बेदारी की हालत में आ गई। मैंने साहिर को बताया कि मुझ पर कैसी कैफियत तारी हो गई थी। उसने कहा कि अगर ये कैफियत तारी हुई थी तो तुम्हें कामयाबी हासिल होगी और इससे मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरा अमल कामयाब है।
अब तुम हर रात इसी वक्त मेरे पास आ जाया करो। तुम्हें 5-6 रातें आना पड़ेगा। फिर एक रोज अजी लूना खुद तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे पास पहुंचेगी और पहले से ज्यादा मोहब्बत और प्यार से अपने पास रखेगी। मुझे ये सब अजीब सा लगा। मैंने अपने आप में तब्दीली सी महसूस की, लेकिन समझ न सकी कि ये क्या है। मेरा आका मुझे वहाँ से ले आया। मैं हैरान थी कि ये शख्स मुझ पर अचानक क्यों इतना मेहरबान हो गया है कि मेरी किस्मत बदलने के लिए मुझे इस साहिर के पास ले गया था। मुझे शक हुआ कि ये हमदर्दी और करम नवाजी के इवज मुझसे कोई उल्टी सीधी फरमाइश करेगा, लेकिन उसने सवाए हमदर्दी के मेरे साथ कोई और बात न की। अगली रात मेरा आका मुझे फिर उस साहिर के पास ले गया। साहिर ने फिर वही अमल दोहराया और मुझे गुज़िश्ता रात वाले अल्फाज बार बार दोहराने को कहा। मैं दोहराती रही, ये औरत मेरी दुश्मन है और मुझे इससे नफरत है। ये मेरे सामने आई तो मैं इसका गला घोंट दूंगी। इस दौरान साहिर के कहने के मुताबिक मैंने मलका अजी लूना का तस्वुर अपने सामने रखा। साहिर ने अपने अमल में ये इजाफा किया कि मेरा सर अपने दोनों हाथों में थाम कर जरा ऊपर किया और कहा कि मेरी आंखों में देखो। मैंने उसकी आंखों में देखा तो यूं महसूस किया कि मैं उसकी आंखों से अपनी आंखें आजाद नहीं करा सकूंगी। उसके होंठ हिल रहे थे, उसकी आंखें 2 आईने बन गईं और उनमें मुझे मलका अजी लूना का चेहरा नजर आने लगा। मेरे कानों में मेरे अपने अल्फाज दाखिल हो रहे थे। ये औरत मेरी दुश्मन है और मुझे इससे नफरत है। ये मेरे सामने आई तो मैं इसका गला घोंट दूंगी। ये अल्फाज मेरे दिल में एक इरादा बनकर उतर रहे थे। साहिर ने अपना अमल यहीं रोक दिया और मेरा माथा और मेरी कनपटियों को मल कर कहने लगा कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। मैं अपने आका के साथ घोड़ा गाड़ी में वापस जा रही थी तो मैंने आका से कहा कि मैं समझ नहीं सकी कि मेरा काम किस तरह होगा। मुझे यूं महसूस हो रहा है कि अजी लूना मेरी दुश्मन है और मुझे इससे नफरत करनी चाहिए। आका हंस पड़ा, फिर कहने लगा कि इस जादूगरी के राज समझने की कोशिश न करो। ये यकीन रखो कि तुम्हारे दिल में जो नफरत का एहसास पैदा हो रहा है, ये अजी लूना के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर रहा है। मैं खामोश रही। गुज़िश्ता रात आका फिर मुझे इस साहिर के घर ले गया। मुझे एक और कमरे में ले जाया गया जहां साहिर के साथ 2 और आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया और हमदर्दी के 1-2 कलमात कहे। साहिर ने मुझे साथ वाले कमरे में बैठने को कहा। मैं इस कमरे में गई। इस कमरे में मुझ पर अमल किया जाता था। मैं इन दोनों कमरों के दरमियानी दरवाजे के करीब बैठी थी। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन कवाड़ पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। मुझे इन लोगों की बातें सुनाई देने लगीं। वो इब्रानी जुबान में बातें कर रहे थे जो यहूदियों की जुबान है। इनका ख्याल था कि मैं ये जुबान नहीं समझ सकती, शायद इसीलिए वो ऊंची आवाज में बोल रहे थे। मलका को मालूम है कि मैं यहूदियों की जुबान बड़ी अच्छी तरह समझती और बोलती हूँ।